ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ برستی بارش میں وہ ایک درخت کی اوٹ میں کھڑی تھی، مگر پھر بھی بارش اسے بھگو رہی تھی۔ یخ بستہ ہوائیں اور ٹھنڈا بارش کا پانی اسے اپنی ہڈیوں میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے سب کو ہی گھر جانے کی جلدی تھی، کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ ہی بہنے لگے۔ وہ رات کے اس پہر گھر سے بغیر سوچے سمجھے نکل آئی تھی، اور اب اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی، مگر اب وہ لوٹ کر اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بیگ اس نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری طرح سے بھیگ گیا تھا۔ اس نے خود کو ایک کالے رنگ کی چادر میں چھپا رکھا تھا، مگر جیسے جیسے بارش کی شدت بڑھ رہی تھی، سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سردی کے مارے اس کے ہونٹ نیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کا پورا جسم بھی بری طرح سے کپ کپاہٹ کا شکار تھا۔ اسی اثنا میں کچھ منچلوں کی ٹولی اس کے سامنے سے گزری۔ ان کی نظر درخت کی اوٹ لے کر کھڑی ایک ڈری سہمی سی لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ لوگ سہرش کے قریب گئے تھے۔ سہرش انہیں دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اگر تم کہو تو ہم تمہیں گھر چھوڑائیں، ایک لڑکے نے سہرش کے قریب آتے سب کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ دہشت سے سہرش کا رنگ سفید ہوا تھا۔ وہ لڑکے سہرش کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ سہرش کے پاس بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ بھاگ کر جاتی کہاں؟ لگتا ہے کہیں جا رہی ہو، ہمارے ساتھ چلو، ہم چھوڑ دیں گے، ایک لڑکے نے اس کے بیگ کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر سہرش کے ہاتھ سے اس کا بیگ لینا چاہا۔ سہرش کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، سہرش نے روتے ہوئے کہا تھا، مگر سہرش کی آنسوؤں کا ان لڑکوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل سہرش پر جملے کس رہے تھے۔ ڈر کے مارے سہرش کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ پچھتانے لگی کہ وہ رات کے اس پہر کیوں گھر سے نکلی۔ اسی اثنا میں سہرش نے ایک آدمی کو تیزی سے اپنی جانب آتا دیکھا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہو؟ وہ بزرگ آدمی دور سے ہی ان لڑکوں پر چیخا تھا۔ وہ لڑکے یکدم ہی گھبرا گئے تھے اور فوراً ہی وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ ان لڑکوں کو جاتا دیکھ کر سہرش نے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اب اسے ان لڑکوں کے چنگل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سہرش نے تشکر بھری نظروں سے اس بزرگ کی جانب دیکھا تھا، جن کی سفید داڑھی ان کے چہرے کو مزید نورانی بنا رہی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ انکل، آپ نے مجھے ان لڑکوں سے بچایا، سہرش نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ سردی کے مارے اسے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ بیٹا، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ مجھے آپ اپنے گھر کا پتہ بتائیں، میں خود آپ کو وہاں بحفاظت چھوڑ کر آؤں گا۔ یہ ماحول اچھا نہیں ہے، لڑکیاں رات کے اس پہر گھر سے اکیلی نکلیں۔ اگر میں بر وقت یہاں نہیں آتا تو وہ لڑکی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، صادق نے پریشانی سے سہرش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ گھر جانے کا نام سن کر ہی سہرش کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے کھڑے بزرگ کو دیکھنے لگی۔ بیٹا، میں نے آپ سے کچھ کہا ہے، مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتائیں، کس طرف ہے؟ سہرش نے سر جھکا لیا اور بے اختیاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، سہرش نے آنسوؤں کے درمیان بس اتنا ہی کہا تھا۔ صادق نے حیرانی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا تھا، جو اپنے گھر کا پتہ بتانے پر راضی نہیں تھی۔ اب صادق اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ لڑکے دوبارہ واپس آ سکتے تھے، اور اگر وہ لڑکے نہیں آتے تو کوئی اور آ جاتا۔ بہرحال سہرش کا یوں رات گئے سڑک پر کھڑے ہونا بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ صادق بھی ایک بیٹی کا باپ تھا، وہ کیسے پھر کسی اور کی بیٹی کو یوں سڑک پر تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ بیٹا، آپ کا یہاں کھڑے ہونا بالکل محفوظ نہیں ہے، صادق نے ایک بار پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے نہیں پتا میں کہاں جاؤں گی، سہرش نے سر جھکاتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ صادق نے سڑک کے کونے پر انہی لڑکوں کو کھڑا دیکھا تھا،
और फिर ठंडी सांस भरकर सैरिश को देखा। आप फिलहाल मेरे साथ चलें, क्योंकि मैं आपको ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, सादिक ने कुछ सोचते हुए कहा था। सैरिश ने एक झटके से सर उठाकर उस बुजुर्ग की जानिब देखा और फिर सोचने लगी कि वो इसके साथ जाए या नहीं, मगर इस सर्दी में खड़े होकर ठुठरने से बेहतर था कि वो उस बुजुर्ग के हमराह चली जाए। सैरिश ने जज्बात में सर हिला दिया और सादिक के पीछे अपने कदम बढ़ा दिए। सादिक की गाड़ी कुछ ही फासले पर खड़ी थी। सैरिश गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और सादिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सैरिश को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सैरिश ने गाड़ी से उतरकर सामने का मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे लग रहा था कि वो शायद किसी और ही दुनिया में आ गई है। उसके सामने बेहद खूबसूरत घर था, जिसकी सारी दीवारें शीशे की बनी हुई थीं। सैरिश ने गर्दन मोड़कर अपने उल्टे हाथ पर बने वसी व अरीज लॉन को देखा, जो खिज़ां की वजह से सूना सूना सा लग रहा था और अब बारिश होने की वजह से मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। सैरिश इस मंजर में खो कर रह गई थी। सादिक बाबा ने सैरिश को अपने साथ आने का कहा। सैरिश हैरान नज़रों से इर्द गिर्द देखती हुई उनके पीछे चल पड़ी। वो दोनों इस घर के लाउंज में पहुंच गए थे। सैरिश को यकदम ही गर्माहट का एहसास हुआ। उसने तशक्कुर की सांस भरी थी, वरना इतनी देर से सर्दी में ठुठरते हुए उसके हाथ पैर सोन से होने लगे थे। ये मेरे साहब का घर है। यहाँ मैं एक मुलाजिम हूँ और इसी घर में रहता हूँ। साहब कुछ महीनों के लिए दूसरे मुल्क गए हुए हैं। जब तक तुम यहाँ रह सकती हो, मगर बेटा जल्द अज जल्द अपने घर वालों को बुला लो ताकि वो आपको यहाँ से लेकर जा सकें। मैं आपको ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रख सकूँगा, सादिक बाबा ने सैरिश से कहा था। सैरिश ने जज्बात में सर हिला दिया। सादिक बाबा उससे उसके घर वालों के बारे में पूछना चाहते थे, मगर सैरिश ने कुछ ना बताने की कसम खा रखी थी। सैरिश उस वक्त बेहद खौफजदा भी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने उसे इस बारे में ज़्यादा नहीं पूछा और उसे सामने वाले कमरे में जाने का कह दिया। सैरिश अपना सामान लिए खामोशी से उस कमरे में आ गई थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो कमरा सादगी मगर बेहद नफासत से सजा हुआ था। सैरिश पहले उन गीले कपड़ों से छुटकारा चाहती थी, फौरन ही अपने बैग से कपड़े निकालकर फ्रेश होने गई। सच शुक्र कि बैग के अंदर उसके कपड़े गीले होने से महफूज रहे थे। सैरिश बेड पर लेटी तो उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। जाने वो कितने ही दिनों बाद सुकून की नींद सोई थी, वरना एक खटके पर भी उसकी आंख फौरन ही खुल जाया करती थी। वो एक खौफ के ज़ेरे असर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर अब यहाँ उसे कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो सुकून की नींद सोई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो जाने ही कितनी ही देर वो अपनी जगह खामोशी से लेटी रही। कल बारिश में मुसलसल भीगने की वजह से उसका पूरा जिस्म दुख रहा था, मगर फिर भी वो हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और कमरे से बाहर आई थी। वो कमरे से बाहर आई तो उसने देखा सादिक बाबा पूरे घर की सफाई कर रहे थे। सैरिश को देखकर वो उसके पास आए। बेटा, आप पहले कुछ खा लो, भूख लग रही होगी। फिर मुझे अपने घर का पता बताओ ताकि मैं आपको वहाँ छोड़ कर आ सकूं। सादिक बाबा ने फिर वही बात दोहराई। नाश्ते का सुनकर सैरिश को भी भूख का एहसास हुआ। वो खामोशी से वहाँ से उठी और किचन में आ गई। अमेरिकन तर्ज पर बना किचन बहुत खूबसूरत था। सामने ही ट्रे में उसके लिए नाश्ता रखा हुआ था। सैरिश वहीं कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। वो नहीं जानती थी कि आगे उसकी किस्मत में क्या लिखा होगा, मगर ये बात तो तय थी कि वो लौटकर वापस उस जहन्नुम में नहीं जाएगी। वो नाश्ते से फारिग होकर दोबारा से लाउंज में आई तो सादिक बाबा बैठे उसी का इंतज़ार कर रहे थे। सैरिश ने एक ठंडी सांस भरी और उनके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। बेटा, आपके घर वाले आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। क्या किसी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर आई हो? सादिक बाबा बहुत प्यार और नरमी से सैरिश से पूछ रहे थे। मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती,
सैरिश ने उंगलियां मरोड़ते हुए उन्हें जवाब दिया। सादिक बाबा ने हैरानी से उस बच्ची की जानिब देखा था जिसकी उम्र महज 16 बरस थी, मगर वो अपने घर जाने से इनकारी थी। सादिक बाबा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहें। बेटा, ऐसे घर नहीं छोड़ते, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। उन्होंने एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश की। आप मुझे कुछ दिन इस घर में रहने दें, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर मैं अपने घर नहीं जा सकती। सैरिश की आंखों में आंसू आ गए। सादिक बाबा ने एक ठंडी सांस भरकर उसे देखा था। वो उसे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकते। अगर इस घर के मालिक को इस बात की भिनक भी लग गई कि इस घर में कोई लड़की मौजूद है, तो जाने वो क्या तूफान उठा दे। यही सोच सोचकर सादिक बाबा परेशान हो रहे थे, मगर अभी इस घर का मालिक इस घर में मौजूद नहीं था। सैरिश कुछ दिन यहाँ रह सकती थी। सादिक बाबा सैरिश को उसके घर वालों के हवाले करना चाहते थे। वो उसे यूं रुलने के लिए छोड़ नहीं सकते थे। सैरिश की उम्र अभी महज 16 बरस थी। वो इस दुनिया से वाकिफ नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि कदम कदम पर भेड़िए उसके मुंतज़िर बैठे हैं। इसीलिए सादिक बाबा ने उसे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी थी। जब तक सैरिश अपने घर वालों के बारे में नहीं बता देती, वो उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। सैरिश को यहाँ रहते हुए 1 माह हो गया था, मगर अब तक उसने सादिक बाबा को अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया था। सैरिश को डर था कि अगर वो उन्हें अपने घर वालों के बारे में बता देगी तो वो उसे उन लोगों के हवाले कर देंगे। जब भी वो इस जिक्र पर खामोश हो जाती, सादिक बाबा भी उससे पूछ पूछ कर थक गए थे। इसीलिए उन्होंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। मगर इस घर के मालिक के आने से पहले पहले उन्हें इसका कोई बंदोबस्त लाजमी करना था। मगर सादिक बाबा नहीं जानते थे कि उनकी शामत बहुत जल्द घर आने वाली है। वो इस बात पर मुतमईन थे कि इब्राहिम मलिक आने से पहले उन्हें फ़ोन करके अपनी आमद के बारे में बता देंगे, तो वो फ़ौरन ही सैरिश को यहाँ से कहीं और भेज देंगे। सैरिश को तन्हा छोड़ने पर भी उनका दिल राज़ी नहीं हो रहा था। उन्हें सैरिश में अपनी बेटी की झलक दिखाई दे रही थी। वो अपने घर वालों से साल में बस एक ही बार मिल पाते थे। इसी वजह से वो अपने घर वालों को बहुत याद करते थे। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी। सैरिश ने अपने कमरे से झांक कर लॉन में देखा था। सर्दियां वापस लौट रही थीं, इसलिए माहौल में खून की कदरें कम हो चुकी थी। बारिश से भीगने को सैरिश का दिल मचलने लगा। सादिक बाबा किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे और 2 घंटे से पहले लौटने वाले नहीं थे। सैरिश अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर लाउंज में आ गई और शीशे के पार बरसती बारिश को देखने लगी थी। और फिर वो लॉन में जाकर बारिश के नीचे खड़ी हो गई। वो पल भर में ही पूरी तरह से भीग चुकी थी। वो उस बारिश के नीचे खड़ी बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वो महज 16 साल की तो थी, मगर किस्मत ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। वो अपना बचपन जी नहीं सकी थी। इसी असना में एक गाड़ी घर के पोर्च में दाखिल हुई, मगर सैरिश ने देखने की जहमत ना की कि कौन आया है। उसे लगा सादिक बाबा वापस आ गए हैं। वो उसी तरह से बारिश में भीगती रही। वो हाथ हवा में फैलाए गोल गोल घूम रही थी। लंबे बाल कैचर की कैद से आज़ाद होकर उसकी कमर पर बिखर से गए थे। इब्राहिम मलिक की गाड़ी के पीछे ही सादिक बाबा की गाड़ी भी घर के पोर्च में दाखिल हुई। इब्राहिम मलिक को यूं अचानक वापस आता देखकर सादिक बाबा के हाथ पांव फूल गए थे। उन्हें जल्द अज जल्द सैरिश को उनकी नज़रों से छुपाना था। इससे पहले सादिक बाबा सैरिश को छुपाने के लिए कुछ करते, इब्राहिम मलिक ने गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए बहुत हैरानी से अपने घर के लॉन का मंजर देखा। इब्राहिम मलिक को एक लम्हे के लिए लगा कि शायद वो गलत घर में दाखिल हो गया है, मगर अगले ही लम्हे उस बेवकूफ़ाना ख्याल पर वो झुंझला गया। उसने गौर से सैरिश की जानिब देखा था और चंद लम्हों के लिए जैसे उसके हुस्न में खो सा गया था। उसे वो लड़की पहली ही नज़र में बहुत मासूम सी लगी थी, मगर अगले ही लम्हे वो गुस्से से अपनी गाड़ी से बाहर निकला था और लंबे लंबे डग भरता
सैरिश के सर पर पहुंचा। सैरिश उसकी आमद से बेखबर अपनी ही ज़ात में गुम थी। इब्राहिम मलिक ने सैरिश का बाजू सख्ती से दबोचकर उसका रुख अपनी जानिब किया। सैरिश ने बौखलाकर पल भर में ही अपनी आंखें खोली थीं और सामने एक अजनबी को खड़े देखकर उसकी सांसें रुक सी गई थीं। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। सैरिश एकदम होश में आई थी और इब्राहिम से खुद को छुड़ाने की कोशिश में थी, मगर इब्राहिम की गिरफ्त उसके बाजू पर मज़ीद सख्त हो गई थी। इब्राहिम मलिक भी पूरी तरह से बारिश में भीग गया था। इब्राहिम मलिक को तो याद भी नहीं था कि वो आखिरी बार बारिश में कब भीगा था। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? इब्राहिम ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए सैरिश की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछा। इब्राहिम मलिक के सवाल को सुनकर सैरिश के पैरों तले से ज़मीन निकली थी। इसका मतलब था कि वो इस घर का मालिक था और आज वापस आ गया था। सैरिश की ज़बान तालू से चिपक गई थी। सादिक बाबा ने उसे कितनी बार कहा था कि वो इस घर के मालिक के आने से पहले यहाँ से चली जाए, मगर उसने उनकी कोई बात नहीं मानी और अब वो इसके सर पर खड़ा उसे खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। सैरिश सब कुछ भूल गई थी, बस टुकर टुकर उसका चेहरा देख रही थी। इब्राहिम मलिक को इस लड़की के यूं देखने से कोफ्त हुई थी। वो सैरिश को वहाँ से लेकर अंदर की जानिब बढ़ा था और लाउंज में आकर एक झटके से उसका बाजू छोड़ा। सैरिश ने बेइख्तियार ही अपने बाजू को सहलाया था। सैरिश को यकीन था कि ज़रूर उसकी 5-6 उंगलियां उसके बाजू में छप चुकी होंगी। सादिक बाबा भी फ़ौरन से उन दोनों के पीछे उनकी जानिब बढ़े थे। अब उन्हें ही इस मामले को संभालना था, क्योंकि वो इब्राहिम मलिक के गुस्से से बखूबी वाकिफ़ थे। वो ये बात भी बखूबी जानते थे कि इब्राहिम मलिक को औरत ज़ात से नफ़रत है। जाने वो कैसे सैरिश का वजूद अपने सामने बर्दाश्त करेगा। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। इब्राहिम मलिक ने गुस्से से सैरिश की जानिब देखते हुए कहा। इब्राहिम मलिक की बात सुनकर सैरिश की औसान खता हुए। उसने बेइख्तियार ही इब्राहिम की जानिब खौफज़दा नज़रों से देखा था। सैरिश की काली स्याह आंखों में खौफ और दहशत उभर आई थी, मगर सादिक बाबा को वहाँ दाखिल होते देखकर उसने सुकून का सांस लिया। उसे यकीन था कि सादिक बाबा सब कुछ संभाल लेंगे। सादिक बाबा ने तासुफ भरी नज़रों से सैरिश की जानिब देखा। उसने अपने साथ साथ उन्हें भी मुश्किल में डाल दिया था। इब्राहिम की नज़र भी उस वक्त सादिक बाबा की जानिब उठी। सादिक बाबा, ये लड़की कौन है? मेरे घर में क्या कर रही है? मैं अपना घर आपके हवाले करके जाता हूँ। मेरे पीछे आप किन लोगों को घर में ले आते हैं? इब्राहिम मलिक सादिक बाबा को देखकर उन पर बुरी तरह से बरसा था। सैरिश को ये सब अच्छा नहीं लगा था। उसकी वजह से उसके मोहसिन को किसी के सामने जवाबदेह होना पड़ रहा था। सैरिश फौरन ही उन दोनों के दरमियान आई। सादिक बाबा की कोई गलती नहीं, इन्होंने तो बस मेरी मदद करने की कोशिश की थी और मुझे कई बार यहाँ से जाने का कहा था, मगर मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं गई। सैरिश ने नम लहजे में सर झुकाए कहा। इब्राहिम ने एक ठंडी सांस भरकर उस छोटी सी लड़की को देखा था, जो जाने कौन थी और पता नहीं उसके घर में कब से रह रही थी। मुझे अपने घर का नंबर दो, अभी फ़ोन करके उन्हें बुलाऊं ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जा सकें। इब्राहिम मलिक की बात सुनकर सैरिश के चेहरे पर एक तारीक सा साया लहराया। सैरिश ने बेइख्तियार ही थूक निकला था। मेरा कोई घर नहीं है, आप मुझे बस कुछ दिन यहाँ रहने दें, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। सैरिश ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों के आंसू गिरने लगे। इब्राहिम मलिक एक ठंडी सांस भरकर रह गया। उसने बेइख्तियार सैरिश के सरापे से नज़रें चुराई थीं। वो अब उसे मज़ीद अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है, फ़िलहाल अपने कमरे में जाओ, इब्राहिम मलिक ने खुश्क लहजे में उससे कहा। सैरिश ने बेयकीनी से इब्राहिम मलिक को देखा, मगर वो उस वक्त नहीं जानती थी कि उसके जहन में क्या चल रहा है। सैरिश को भी एहसास हुआ था
کہ وہ کس حالت میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ فوراً ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ صادق بابا، یہ لڑکی بہت کم عمر ہے، ہم نہیں جانتے یہ کس وجہ سے اپنے گھر سے نکلی ہوگی، اس لڑکی کو لازمی اس کے گھر پہنچانا ہوگا، ابراہیم ملک نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی کسی کا نمبر ملایا تھا اور اس کو سحرش کے بارے میں پوری معلومات دے کر اس کے گھر کا پتہ ڈھونڈنے کو کہا۔ ابراہیم ملک سفر کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا، اسی وجہ سے وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اوپر سے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اسے چھینکیں بھی لگ گئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، اپنے لیے شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر فریش ہونے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا تو صادق بابا نے اسے کھانا لگ جانے کی اطلاع دی تھی۔ ابراہیم اس وقت آرام کرنا چاہتا تھا، مگر اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کھانے کی میز پر آ گیا۔ وہ صادق بابا کے ہاتھ کا بے ذائقہ کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ صادق بابا جیسا تیسا ابراہیم کے لیے کھانا بنا کر رکھ دیتے، ابراہیم کو وہی زہر مار کرنا پڑتا تھا۔ ابراہیم ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو دال چاول کی اشتہا انگیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ ابراہیم نے حیرانی سے کھانے کو دیکھا، یہ صادق بابا کے ہاتھ کا کھانا ہرگز نہیں تھا۔ ابراہیم نے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں دال چاول نکال لیے اور پہلا ہی نوالا لے کر اسے احساس ہوا کہ اس نے جانے کتنے ہی دنوں بعد گھر کا بہترین اور ذائقے دار کھانا کھایا ہے۔ صادق بابا، یہ کھانا کس نے بنایا؟ ابراہیم نے اپنی پلیٹ میں مزید کھانا نکالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سحرش بیٹی نے بنایا ہے، صادق بابا نے اٹکتے ہوئے ابراہیم کو بتایا تھا۔ ابراہیم نے پرسوچ نظروں سے سحرش کے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا۔ اس لڑکی کو بھی کھانے کے لیے بلا لیں، ابراہیم نے مصروف سے لہجے میں ان سے کہا۔ صادق بابا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور سحرش کو بلا لائے تھے۔ سحرش شاید ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اپنا دوپٹہ خود کے گرد اچھی طرح سے پھیلاتے ہوئے وہ باہر آ گئی۔ اس کے بالوں سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ سحرش خاموشی سے ابراہیم سے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، ذرا سے چاول اپنی پلیٹ میں نکال لیے۔ شاید بارش میں بھیگنے کی وجہ سے سحرش کو سردی لگ گئی تھی۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا جبکہ وہ مسلسل چھینک رہی تھی۔ ابراہیم نے ایک نظر اس نازک سی لڑکی کو دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لیں۔ صادق بابا اسے ساری بات بتا چکے تھے کہ وہ اسے سڑک پر ملی تھی۔ کچھ لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے تو وہ اسے وہاں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر وہ اپنے گھر کا پتہ نہیں بتا رہی تھی اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ بتا رہی تھی کہ وہ اس سڑک پر کیوں کھڑی تھی۔ ابراہیم کا دوست ابھی تک سحرش کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ابراہیم اسے اپنے گھر میں برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ مگر اس سب میں ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ ابراہیم کو ڈھنگ کا کھانا کھانے کو مل گیا تھا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ سحرش کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، جبھی ابراہیم بہت شوق سے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ مگر ابراہیم سحرش کو مخاطب نہیں کرتا تھا، سحرش خود بھی اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ ایک روز سحرش اپنے کمرے میں تھی جب اسے لاؤنج میں کسی بچے کے کھلکھلانے کی آواز آئی۔ سحرش نے بہت حیرانی سے یہ آواز سنی، کیونکہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا تو یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی۔ سحرش اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں گئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ابراہیم ملک زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پیٹھ پر ایک 3 سال کا پیارا سا بچہ سوار تھا۔ ابراہیم اس کی کسی بات پر دل کھول کر ہنس رہا تھا۔ سحرش کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے پہلی بار ابراہیم ملک کو ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ سحرش دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس بچے کی نظر سحرش پر پڑی۔ وہ فوراً ہی ابراہیم کی پیٹھ سے اتر کر سحرش کی جانب بڑھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ بچہ آنکھوں میں اشتیاق لیے سحرش سے پوچھ رہا تھا۔ سحرش اس کے سوال پر گڑبڑا گئی تھی اور پھر اس کا سوال نظر انداز کر کے اس نے بچے سے پوچھا تھا، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں اور میرا نام شایان ہے،
उस बच्चे ने अपनी तोतली ज़बान में सैरिश को जवाब दिया। सैरिश का बेख्तियार जी चाहा कि वो इस बच्चे को गोद में उठा ले। सैरिश ने झुककर उस गोल मटोल से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लिए इब्राहिम की जानिब बढ़ी थी। इब्राहिम मोहब्बत पाश नज़रों से शायान की जानिब देख रहा था। ये बच्चा कौन है आपका? सैरिश ने इब्राहिम मलिक को पहली बार खुद से मुखातिब किया। सैरिश को लगा कि उसका भांजा या भतीजा होगा, क्योंकि उसके चेहरे के नकोश काफ़ी हद तक इब्राहिम मलिक से मिल रहे थे। ये मेरा बेटा है, शायान इब्राहिम। उसको देखकर इसकी गोद में आने के लिए बेचैन हो गया था, इसलिए उसे सैरिश की गोद से लेते हुए जवाब दिया था। सैरिश ने बेयकीनी से इब्राहिम की जानिब देखा था। इब्राहिम मलिक शादीशुदा था और उसे इस बात की खबर ही नहीं थी। ओह अच्छा, आपकी वाइफ कहाँ है? सैरिश ने लाउंज में इर्द गिर्द देखते हुए कहा। सैरिश की बात सुनकर इब्राहिम मलिक के माथे पर बल पड़े थे। तुमने आज तो उस औरत के बारे में मुझसे पूछ लिया है, आइंदा ये बात तुम्हारी ज़बान पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इब्राहिम मलिक ने गुस्से से धाड़ते हुए सैरिश से कहा। सैरिश की आंखों में उलझन उभरी थी। उसने ऐसा भी क्या सवाल पूछ लिया जो इब्राहिम मलिक को इतना गुस्सा आ गया। पल भर में ही उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने दुख से इब्राहिम मलिक की जानिब देखा और अपने कमरे में चली गई। इब्राहिम ने गुस्से से सर झटका। वो अपनी ज़िंदगी में उस औरत का जिक्र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जायशा और इब्राहिम मलिक की पसंद की शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ अरसे तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर जल्द ही जायशा के रंग ढंग बदलने लगे थे। वो बिना बात के इब्राहिम से झगड़ने लगी थी। इब्राहिम कोशिश करता कि ऐसी कोई बात ना हो जो जायशा को बुरी लगे, मगर जायशा ने जाने क्या सोच कर बैठी थी। वो इब्राहिम से लड़ने के बहाने तलाश करने लगी थी, यहाँ तक कि जब उसे खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है तो उसने अपने पेट में मौजूद बच्चे को भी मारने की कोशिश की। इब्राहिम ने उसे प्यार से समझा कर देखा, मगर वो नहीं समझ रही थी। यहाँ तक कि इब्राहिम ने उसे गुस्से में भी समझा कर देखा था, मगर जायशा का रवैया दिन ब दिन बदलता चला जा रहा था। उसके लिए ये बच्चा एक बोझ बन गया था जिसे वो हर हालत में छुटकारा हासिल करना चाहती थी, और उसके लिए उसने हर हरबा आजमाया था, मगर उस बच्चे का दुनिया में आना तय था। इब्राहिम को लग रहा था कि शायद बच्चा होने के बाद वो ठीक हो जाएगी, मगर ये उसकी खाम ख्याली साबित हुई थी। शायान इस दुनिया में आ गया था और जायशा अपने चंद दिन के बेटे को यहीं छोड़कर अपने मैके चली गई थी और इब्राहिम से तलाक मांग ली थी। इब्राहिम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो चकरा कर रह गया था। वो जायशा के पैर तक पड़ गया था कि वो नन्ही सी जान के साथ ये जुल्म ना करे, मगर जायशा ने अपने बेटे को देखना भी गवारा नहीं किया था। उसकी बस यही रट थी कि वो इब्राहिम के साथ नहीं रहना चाहती। इब्राहिम को समझ नहीं आ रहा था कि जायशा ऐसा क्यों कर रही थी। जब इब्राहिम उसे तलाक देने पर आमादा नहीं हुआ तो जायशा ने कोर्ट के ज़रिए उसे खुला ले ली। जिस दिन इब्राहिम को खुला के कागजात मिले थे उस दिन शायान को बहुत तेज़ बुखार था। वो 2 माह का बच्चा बिन माँ के तड़प रहा था, मगर उसकी माँ को इसका कोई ख्याल नहीं था। अपने बेटे को अस्पताल में लिए बैठे इब्राहिम के दिल से जायशा हमेशा के लिए मिट गई थी, और साथ ही उसका औरतों पर से एतबार भी ख़त्म हो गया था। इब्राहिम की माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। वही शायान की देखभाल करती थी, क्योंकि इब्राहिम को अक्सर काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना होता, तो उसने शायान को उन्हीं के हवाले कर दिया था। जिस दिन वो घर होता शायान को अपने साथ ले आता था। आज वो शायान को ले आया था। वो उससे मिलने ऑफिस से वापसी पर रोज़ ही जाता था। सादिक बाबा की ज़बानी सहरिश को ये सब मालूम हुआ। उसे शायान के लिए बहुत दुख हुआ था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई औरत अपनी ही औलाद से मुंह मोड़ सकती है। सहरिश लॉन में झूले पर बैठी थी जब उसे शायान बाहर आता दिखाई दिया। सहरिश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। वो चलता हुआ सहरिश की जानिब भी आ रहा था। वो करीब आया तो सहरिश ने आगे बढ़कर
उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो बच्चा शायद माँ की मोहब्बत को तरसा हुआ सैरिश की गोद में लेते ही वो उसके कंधे से लग गया और जाने उसे अपनी ज़बान में क्या क्या बातें करने लगा था। सैरिश बहुत दिलचस्पी से उसकी सारी बातें सुन रही थी और साथ साथ उसे जवाब भी दे रही थी। इब्राहिम ने काफ़ी देर तक शायान को नहीं देखा तो वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आया और उसे सैरिश की गोद में चढ़े देखकर वापस मुड़ गया। काफ़ी देर तक वो दोनों लॉन में बैठे बातें करते रहे थे और फिर जब शायान ने उसे कहा कि उसे भूख लग रही है तो सैरिश उसे गोद में लिए किचन में आ गई और उसे काउंटर पर बिठाकर खुद उसके लिए फ्राइज़ बनाने लगी थी। इब्राहिम लाउंज में ही सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में मसरूफ़ था। उसके कानों में सैरिश और शायान की बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं जो जाने किसी कार्टून की बातें कर रहे थे। इब्राहिम ने गर्दन मोड़कर किचन की जानिब देखा। शायान तो सैरिश को देखकर उसे भूल ही गया था। इसी असना में इब्राहिम के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। इब्राहिम फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और परेशानी की आलम में घर से निकल गया। सैरिश ने उसे तेज़ी से घर से निकलते देखा था। इब्राहिम को गए रात होने को आई थी मगर अब तक उसका कुछ पता नहीं था। शायान को सैरिश ने ही संभाला था। शायान उसके साथ खुश भी था मगर अब वो बार बार अपने बाबा के बारे में पूछ रहा था। सैरिश ने सादिक बाबा से इब्राहिम के बारे में पूछा तो सादिक बाबा ने उसे बताया कि इब्राहिम की माँ का अचानक इंतकाल हो गया है। इब्राहिम वहीं गया है और कहा है कि बस आज की रात वो शायान को संभाल ले। वो घर जल्दी आने की कोशिश करेगा। सैरिश को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो शायान को अपने साथ लिए अपने कमरे में आ गई थी और शायान को सुलाने की कोशिश करने लगी थी। शायान कुछ देर तक तो उसके साथ खेलता रहा और फिर थक कर वहीं उसके साथ ही सो गया था। सैरिश को वो बच्चा बेहद अच्छा लगा था। उसके साथ साथ सैरिश की भी आंख लग गई थी। कोई सैरिश के कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रहा था। सैरिश नींद से उठकर बैठ गई और दुपट्टा ओढ़ती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला तो इब्राहिम मलिक खड़ा था। वो बेहद थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें भी बेपनाह सुर्ख हो रही थीं। शायान को मुझे दे दो, इब्राहिम मलिक ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। सैरिश ने एक नज़र बेखबर सोए शायान पर डाली और फिर बेहद थके हुए इब्राहिम को देखा। आप सो जाएं जाकर, शायान मेरे पास आराम से सो रहा है। अगर आप उसे उठाएंगे तो उसकी नींद खराब हो जाएगी, फिर वो आपको भी सोने नहीं देगा, सैरिश ने धीमे से लहजे में कहा। इब्राहिम ने गहरी नज़रों से सैरिश की जानिब देखा। आज दोपहर को ही उसने सैरिश से इंतहाई दुरुस्ती से बात की थी मगर सैरिश को उसके बेटे की और उसकी नींद की परवाह थी। इब्राहिम को सैरिश की बात ठीक लगी थी। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी और उसे उस वक्त तक नींद की शदीद ज़रूरत थी। वो शायान को सैरिश के पास छोड़कर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेटते ही कब उसकी आंख लगी उसे कुछ पता ही नहीं चल सका था। सुबह उसकी आंख खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ बैठा। वो काफ़ी देर तक सोया रह गया था। इब्राहिम नीचे आया तो सैरिश शायान को नाश्ता करवा रही थी। इब्राहिम को देखकर शायान उसकी जानिब दौड़ा आया और झट से उसकी गोद में चढ़ गया और इब्राहिम को बताने लगा कि सैरिश ने कल से उसे कौन कौन सी कहानियाँ सुनाई थीं। सादिक बाबा ने इब्राहिम के सामने नाश्ता लगा दिया था। इब्राहिम ने बमुश्किल 2-4 लुक़मे ही लिए थे। उसकी माँ इस दुनिया में उसकी वाहिद गमगुसार थी जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब शायान को संभालने का मसला था। इब्राहिम को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शायान को कैसे संभालेगा। मगर कुछ ही देर बाद सैरिश अपने कमरे से निकली। शायान फिर से उसकी गोद में चढ़ गया। उसने भी बहुत मोहब्बत से शायान को अपनी गोद में लिया। मुझे ऑफिस जाना है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो शायान को संभाल सकती हो। मैं जल्द ही कोई और बंदोबस्त कर लूँगा, इब्राहिम ने सैरिश की जानिब देखते हुए उससे पूछा। मैं संभाल लूँगी, सैरिश ने मुख्तसर सा जवाब दिया और शायान को लेकर वहाँ से चली गई थी। इब्राहिम को लगा वो शायान के मामले में सैरिश पर एतबार कर सकता है। इब्राहिम अपने ऑफिस चला गया था। सारा दिन शायान सैरिश के साथ ही रहा था।
मगर सैरिश को उसे संभालना बोझ नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो उसके साथ बहुत खुश थी। शायान सैरिश के साथ बहुत हिल गया था, सारा दिन उसी के पास रहता था। रात को जब इब्राहिम घर आता तो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर निहाल हो जाता। वो हमेशा से अपने बेटे से दूर रहा था। इब्राहिम इस बात को तरसता था कि वो ऑफिस से घर वापस आए तो उसका बेटा भागता हुआ उसकी जानिब आए, और आज उसका ये ख्वाब भी पूरा हो गया। और ये सब कुछ सैरिश की वजह से मुमकिन हुआ था। वो नहीं जानता था कि अगर सैरिश शायान को संभालने से इनकार कर देती तो वो शायान का क्या करता, उसे कैसे संभालता। इब्राहिम दिल ही दिल में सैरिश का बहुत मशकूर था, मगर इब्राहिम अब भी चाहता था कि सैरिश अपने घर वापस चली जाए। वो उसे मज़ीद यहाँ रखकर किसी किस्म की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। एक रोज़ इब्राहिम के दोस्त का फ़ोन आया। उसने सैरिश के घर के बारे में मालूम कर लिया था। सैरिश के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे, तो उसके दोस्त ने उन्हें इब्राहिम के घर का पता दे दिया। वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले थे। इब्राहिम घर आ गया था। सैरिश शायान को लेकर लाउंज में ही बैठी थी। वो दोनों कोई कार्टून देख रहे थे। सैरिश वक्फे वक्फे से शायान के मुंह में पॉपकॉर्न भी डाल रही थी। उन दोनों की पूरी तवज्जो टीवी पर मरकूज थी। इब्राहिम सैरिश को बताना चाहता था कि उसके घर वाले उसे लेने आ रहे हैं, मगर इसी असना में सादिक बाबा के साथ कुछ लोग लाउंज में दाखिल हुए थे। कदमों की आवाज़ सुनकर सैरिश ने गर्दन मोड़कर लाउंज के दाखिली दरवाजे की जानिब देखा, और फिर वो नज़रें पलटना भूल गई। उसकी सौतेली माँ और उनका भाई दोनों लाउंज में खड़े थे। सैरिश को लगा अभी इस घर की छत उस पर गिर जाएगी। उनके पीछे ही इब्राहिम खड़ा था। सैरिश ने इब्राहिम को शिकायती नज़रों से देखा। इब्राहिम को जाने क्यों शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वो तो बस सैरिश को उसके घर वालों से मिलाना चाहता था। सैरिश की सौतेली माँ उसकी जानिब बढ़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़कर जाने की? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि ये कोशिश मत करना। उस औरत ने सैरिश के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। दर्द के मारे सैरिश के मुंह से सिसकी बरामद हुई। इब्राहिम की आंखें हैरत से फैली थीं। वो एक लम्हे में सैरिश तक पहुंचा था और उस औरत की गिरफ्त से सैरिश को आज़ाद करवाया था। सैरिश फौरन इब्राहिम की कमर के पीछे छुपी। आपको हमारे दरमियान आने की ज़रूरत नहीं, ये लड़की इसी काबिल है। उस औरत ने कमर पर हाथ रखते हुए तेज़ नज़रों से इब्राहिम को देखा। ये आपकी बेटी है, आप प्यार से समझाएंगी तो समझ जाएगी। इब्राहिम ने माहौल की गर्मी को कम करने की कोशिश की। उसे प्यार की ज़बान समझ ही कहाँ आती है। मैं तो इसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर हर बार इसने मेरे प्यार को धुतकारा है। उस औरत के साथ आया आदमी भी सैरिश की जानिब बढ़ा था और सैरिश की कलाई थाम कर उसे अपने सामने किया। मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारी वजह से अपना घर छोड़कर आई हूँ, तुम यहाँ भी आ गए। सैरिश ने उसके मजबूत हाथों से अपनी नाजुक सी कलाई छुड़ाते कहा। इब्राहिम को इस तरह से उसका सैरिश का हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने फौरन ही सैरिश का हाथ थामा था और उसे दोबारा से अपनी कमर के पीछे किया, मगर सैरिश उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आपने बुलाया है ना इन लोगों को यहाँ पर? सैरिश ने रोते हुए इब्राहिम से कहा। ये लोग मेरे घर वाले नहीं हैं। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। ये मेरी सौतेली माँ है और ये उनका भाई है। ये मेरी अपने भाई से शादी करवाना चाहती है। मैं ये बर्दाश्त कर लेती, घर से कदम ना निकालती, मगर ये शख्स मुझे एक रात के लिए जुए में हार आया है। आप बताएं मैं कैसे अपनी इज़्ज़त का सौदा कर सकती थी? अपनी इज़्ज़त बचाने को ही मैं घर से भागी थी और यहाँ पनाह ली थी। अगर आप मुझे मज़ीद अपने घर में नहीं रख सकते थे तो मुझे बता देते, मैं चली जाती, मगर मेरे साथ यूं तो ना करते। सैरिश बुरी तरह से रो रही थी। आपने मुझे दोबारा से उसी जहन्नुम के हवाले कर दिया। ये शख्स मुझे रोज़ जुए में हार कर आएगा और मैं रोज़ किसी न किसी के बिस्तर की जीनत बनूंगी। सैरिश ने फूले तनफ़ुस से कहा था। आंखों में आंसू जमा थे, लहजे में अजियत ही अजियत थी। इब्राहिम ने बेसाख्ता खुद को कोसा।
तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। इब्राहिम ने सैरिश का हाथ थामते हुए उसे अपने साथ होने का यकीन दिलाया और सैरिश के सामने आकर खड़ा हुआ। अगर तुम 2 मिनट में इस घर से बाहर नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। इब्राहिम ने कड़े तेवरों से उन दोनों की जानिब देखते कहा, किस हैसियत से तुमने इसको अपने घर में रखा हुआ है? अगर ये बात पुलिस तक पहुंची तो सवाल तो तुम पर भी उठेगा, और मैं इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूं, मगर जल्द ही मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। वो दोनों ही वहां से चले गए। लाउंज में सन्नाटा छाया हुआ था। सैरिश अपने कमरे में जा चुकी थी। शायान टीवी देखते देखते सो गया था। इब्राहिम वहीं अपना सर थाम कर रह गया। वो तो समझ रहा था कि सैरिश अपने घर में महफूज रहेगी, मगर वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो अपने ही घर में महफूज नहीं थी। जाने कितनी ही मुश्किलों से वो अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागी होगी। इब्राहिम जानता था कि वो आदमी चैन से नहीं बैठेगा, और वही हुआ जिसका डर था। उस आदमी ने इब्राहिम के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी थी कि उसने एक लड़की को ज़बरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है। इब्राहिम का ये कदम उसके ही गले पड़ गया था। वो सैरिश को उन लोगों के हवाले नहीं करना चाहता था। अगर सैरिश ने इसके घर पनाह ली थी तो वो उसका मुहाफिज बनना चाहता था। सैरिश शायान के लिए किचन में खड़ी कुछ बना रही थी जब इब्राहिम वहां दाखिल हुआ। उस दिन के बाद से सैरिश ने इब्राहिम से कोई बात नहीं की थी। इब्राहिम कुछ देर तक खड़ा उसे देखता रहा। सैरिश, मुझसे शादी करोगी? इब्राहिम ने पानी पीते हुए सैरिश से पूछा। सैरिश का हाथ यकदम ही थमा था। इब्राहिम ने अपनी बात इतनी आसानी से कर दी थी। सैरिश को लगा इब्राहिम का दिमाग चल गया है। सैरिश नहीं जानती थी कि उसकी सौतेली माँ ने इब्राहिम के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। तुम्हारी सौतेली माँ और भाई ने पुलिस में मेरी शिकायत कर दी है कि मैंने तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है। वो लोग कभी भी तुम्हें ले जाएंगे, और मैं तुम्हें हरगिज़ भी उन लोगों के हवाले नहीं करना चाहता। तुम्हारी हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि तुम मुझसे निकाह कर लो। इब्राहिम सैरिश की आंखों में आंखें डाले उसे शादी के लिए कह रहा था, और सैरिश बेयकीन सी खड़ी उसे सुन रही थी। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयाँ वाज़िहा देखी जा सकती थीं। हमें आज ही निकाह करना होगा, इब्राहिम ने उसे कहा तो सैरिश ने संभल कर उसे देखा। रोज़ जुए में हारने से बेहतर था कि सैरिश इब्राहिम से निकाह कर ले। सैरिश के पास इब्राहिम की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। सैरिश को लगा इब्राहिम शायद उससे खामोशी से निकाह करेगा, मगर शाम में सैरिश के पास निकाह का जोड़ा आया तो उसने हैरानी से उस हसीन जोड़े को देखा, और साथ में नाजुक सी ज्वेलरी भी थी। सैरिश वो जोड़ा पहनकर तैयार हो गई, मगर फिर इब्राहिम के घर वालों को देखकर हैरान रह गई। इब्राहिम के सारे ही घर वाले वहाँ मौजूद थे, और वो सब लोग बहुत खुले दिल से सैरिश से मिले थे। सैरिश उन सब को देखकर परेशान हो गई थी। कुछ ही देर में निकाह की रस्म अदा कर दी गई। इब्राहिम के घर वाले खाना खाकर वहाँ से जा चुके थे। सैरिश को वो लोग बहुत अच्छे लगे थे। वो अपने कमरे में वापस आ गई थी जब सैरिश के कमरे पर दरवाजे पर दस्तक हुई। सैरिश ने दरवाज़ा खोला तो इब्राहिम सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। सैरिश ने हैरानी से उसे देखा। शायद अभी हमारा कुछ देर पहले निकाह हुआ है, इब्राहिम ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। सैरिश ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। तुम अब मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरे कमरे में होना चाहिए, इब्राहिम ने उसकी नाजुक कलाई थामते हुए कहा, और उसे साथ लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सैरिश हैरान परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है। शायान अपने कमरे में सो रहा था। सैरिश को अपने कमरे में छोड़कर इब्राहिम अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया। वो वापस आया तो सैरिश अभी भी कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। यह निकाह तो बस मुझे उन लोगों से बचाने के लिए किया है, सैरिश ने अटकते हुए इब्राहिम से कहा था। सैरिश को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बोले। इब्राहिम ने उसकी बात सुनी और उसकी जानिब बढ़ा। मैंने ये निकाह पूरे दिल से किया है। तुम जानती हो
उस औरत के धोखा देने के बाद मेरा औरत ज़ात से एतबार उठ गया था, मगर तुमने मुझे बताया कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। वो माँ होकर शायान को मोहब्बत नहीं दे सकी, और तुमने एक अजनबी होकर शायान को मोहब्बत दी, जिस मोहब्बत के लिए वो 3 साल से तरस रहा था। आज मैं अपने बेटे के चेहरे पर सुकून देखता हूँ तो तुम्हारे एहसान तले दब जाता हूँ। इसे तुम मेरी खुद गर्जी समझो या कुछ भी, मगर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता। तुमने मेरे घर को घर बनाया है। इब्राहिम ने उसे बाजू से थामते हुए बेड पर बिठाया था। सरिश की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसने कब सोचा था कि उसे ये इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी। वो तो दिन रात यही सोचकर हलकान रहती थी कि यहाँ से निकलकर कहाँ जाएगी।